So very good afternoon students. This is Deepak Upadhyay, your maths teacher. So class 8, I am here with a new video on chapter quadrilateral. So in the previous video we have discussed about angle sum property of quadrilateral, in which we have proven this angle sum property means all the sum of angle of a quadrilateral should be equals to 360 degree. Now in this video we are going to talk about the types of quadrilateral and we are going to study some theorems on the basis of this. Okay? Chale, let us talk about types of quadrilateral. And with the first one I am taking parallelogram. Okay? Basically parallelogram is a type of quadrilateral in which two opposite sides are equal and parallel to each other. Suppose I am taking ABCD as a parallelogram to quadrilateral. So here AB should be equals to CD and AB equals to CD also. And AD is parallel to BC and AD equals to BC also. Okay? This we have to, this is the concept कि आपका जो पैरेललोग्राम है उसमें ये चीज़ होनी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ थियरम्स लगा लेते हैं. ठीक है. So this is the first theorem which I am going to tell you. First theorem. It says that कि if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, that means it is given that AB equals to CD. It is given, है ना? It is given that AB equals to CD and AB is parallel to CD or DC, है ना? So we have to prove that कि ABCD is a parallelogram. That we have to prove. ठीक है, चलिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे एक डायगोनल बनाते हैं AC. ठीक है, अब this is the thing which is given. AB is given parallel to CD. That means कि अगर हम ध्यान दें तो AB should be equals to CD. पहली चीज़ है ना? और आपका AC should be common in both the triangles. इन दोनों triangles में AC common है. And if this is parallel to this, according to this, alternate angle should be equal. है ना? Alternate angle इसमें equal होंगे. Means angle CAB should be equals to angle DCA. है ना? Alternate angle. ठीक है? This is alternate to each other. So that's why this should be equals. Okay now. Now by the axiom of SSA or SAS, हम कह सकते हैं triangle ABC should be congruent to triangle ACD, isn't it? है ना? This triangle should be equals congruent to this. When two triangles are congruent to each other, so by CPCT, their rest of the angles and sides should be equal by the corresponding parts of congruent triangle. So we can say this कि AD is equal to BC and this angle also, this angle and this angle. That means कि कौन सा angle DAC and angle ACD, ये दोनों भी इक्वल होंगे बाई CPCT. अब एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी दो ट्रायंगल्स में अगर आपने देखा कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी तो ऑल्टरनेट है एक दूसरे के. अगर ये ऑल्टरनेट हो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल नहीं होंगे. और इसमें आपने देखा कि ये इसके पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन ही था पैरेलल, और ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल प्रूव आपने किया. तो जैसे ही हमने ये पाया तो आप क्या कह सकते, ये कैसा था, ये क्या है, ये इट इज अ पैरेललोग्राम. ये आपका प्रूव हो गया कि इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम. So let us see what it is asking for. In a parallelogram, opposite sides are equal. ठीक है, in a parallelogram, opposite sides are equal and opposite angles are equal. तो हमें एक पैरेललोग्राम लेना है जिसमें ये चीज़ें प्रूव करके दिखानी. चलिए कर लेते हैं. तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ठीक, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप. दो ट्रायंगल्स बना लीजिए ABCD. ठीक, चलिए आई एम नेमिंग देम. दिस इज एंगल 1
दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ये आपका एंगल्स नाम दे दिया आपने. नाउ if this is parallel to this, so we can say that कि angle 1 is equals to angle 3. Angle 1 equals to angle 3 आप कह सकते हो, है ना. And angle 4 is equals to angle 2. अगर ये parallelogram है तो this angle should be equals to this and this one should be equals to this according to the alternate theorem, जैसे alternate से आपने prove किया. और in both the triangles AC is the common one, common line segment, है ना. So we can say that the triangle ABC is congruent to triangle ADC, isn't it? हम कह सकते हैं अगर ये आपका बेटा congruent है तो जो इसकी साइड होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, ये भी इसके इक्वल होगी. तो पहली चीज तो आपकी प्रूव होगी, है ना. जैसे ये दोनों ट्राइंगल कन्वर्ट आया तो हमने कह सकते हैं AB इक्वल्स टू CD बाई द CBCT एंड AD इक्वल्स टू BC बाई CBCT. ठीक है, तो पहला आपका चीज तो प्रूव हो गया. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट थिंग इट इज आस्किंग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर हम यहीं से इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर दे तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल फोर्थ एंड एंगल थर्ड प्लस एंगल 2, इन दोनों को ऐड करें तो ये पूरा क्या बनेगा, एंगल 1A. और इसको एंगल इक्वल करें तो ऐड करें तो एंगल C. तो एंगल A C के इक्वल हो गया कि नहीं. तो आपका सेकंड थिंग ये आपको प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एज सेम वे एज यू हैव टेकन दिस ट्रायंगल ABC एंड ADC, यू कैन टेक ADC एंड DCB टू प्रूव दिस. ठीक है, कि आपका अपोजिट आप चेंज कर लीजिए. जैसे आपने ये प्रूव किया ना, दिस ट्रायंगल यू हैव टेकन, और आपने उससे प्रूव किया क्या कि ABC एंड ADC कन्वर्ट है, और उससे आपने प्रूव किया अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स को. सेम वे आप इस बार ये हटा लीजिए और आप इन ट्रायंगल्स को ले लीजिए. और सेम वे यू कैन प्रूव दिस कि एंगल B इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल D. दिस इज थिंग व्हिच यू हैव टू प्रूव. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे चले. थ्योरम थर्ड. चलिए थ्योरम थर्ड देखते हैं. The diagonals of parallelograms bisect each other. The diagonals of parallelograms bisect each other. ठीक है, A, B, C, D. That means we have to prove this कि AO equals to OC and BO equals to BU. ठीक है, यही हमें प्रूव करना है in this theorem. तो इसे समझिएगा. The question is asking we have to prove कि the diagonals are intersecting each other at point O. That means कि ये जो है आपका ये आपका इक्वल होना चाहिए. AO equals to OC and BO equals to OB. ठीक है, चलिए. तो here I am taking triangle AOB and triangle DOC. ठीक है, here I am taking triangle AOB and DOC. ठीक है. So as you know, according to the parallelogram, we can say that कि AB equals to DC, है ना. और ये पैरेललोग्राम है तो दिस एंगल आल्सो बी इक्वल्स टू दिस. मैं एंगल 1 2 ले रहा हूँ, उसको 3 और 4 ले रहा हूँ. ठीक है, तो आई कैन से दिस कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना. तो बाय ASA एग्जाम वी कैन से दिस कि दिस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TOC. ठीक है. When they are congruent to each other, that means according to the congruency, we can say that the other rest of the sides should be equals to. That means AO equals to AC and DO equals to OB. Okay, proved by CBCT. ठीक है, by CBCT we can say this that this is equal to this. So that's why this would be the midpoint, or they will be intersecting each other. ठीक है, चलिए. Next theorem is of the diagonals of rectangle equal and bisect each other. It is the same way you can find out कि अगर ये आपका क्या नहीं होता, ये अगर पैरेललोग्राम ना होता तो एक रेक्टेंगल होता, और रेक्टेंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा. हाँ, रेक्टेंगल इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम, बट आप देखिएगा ध्यान से कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल में आपने क्या चीज़ देखी, इट इज अपोजिट साइड इज
opposite to each other and their sides are equals to each other, है ना, opposite sides are equal. As same way rectangle में भी वही concept होता है, but the different is कि इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता, इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, ये चीज़ डिफरेंट है, बट कंसेप्ट आपका वही लगेगा. तो फोर्थ थ्योरम विल बी सिमिलर टू दिस. ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं. The first question is, two adjacent angles of parallelograms are equal. Find the measure of all the angles. What is the name of its parallelogram? चलिए बात करते हैं. This is 16.2, exercise 16.2, and the first question. It is saying two adjacent angles of parallelograms are equal. Two adjacent angles of parallelogram. Here I am drawing one parallelogram and adjacent side means this side or this side, या इसका हो सकता है या इसका हो सकता है. तो I am taking this one. Suppose मैं आपने इसको कहा, इसको किया, मैंने दोनों ले लिया. Suppose ये x है, आपका ये x है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है according to the question two adjacent sides are equal. I have taken the as a x. Now find out all the measures of the all angles. अगर ये बेटा x है तो आप जानते हैं कि according to the parallelogram अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आपका एंगल ए जो होगा वही एंगल सी भी होगा. एज से जो एंगल आपका बी होगा वही एंगल टी भी होगा. यू कैन सी दिस. अब फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ऑल द फोर एंगल सम्स शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नाउ x प्लस एक्स 4x हो गया, चार एक्स को ऐड कर दिया 360 एंड x इक्वल्स टू 360/4 मीन्स 90 डिग्री. मतलब सारे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री. अ पैरेललोग्राम विच इज ऑफ 90 डिग्री, जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, वो कौन सा पैरेललोग्राम होगा? उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल. क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. The measures of two adjacent angles are in the ratio of 5:4. जैसे आपने यहाँ पे इसको पढ़ा, आपने x रखा था, यहाँ पे उसको आपको 5x 4x रखना है ना. ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 4x रहेगा. एंगल फाइंड आउट करके आइए, ठीक है. दिस यू कैन डू. आई थिंक नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. द वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 25 सेंटीमीटर मोर देन इट्स एडजेसेंट साइड. ठीक है, हियर आई हैव टेकन पैरेललोग्राम. वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 25 सेंटीमीटर मोर देन इट्स एडजेसेंट साइड. Suppose here it is of x centimeter, so this would be x plus 25 according to the question, because जो भी साइड दी हुई है उससे दूसरी जो एडजेसेंट साइड लगी है वो उससे 25 सेंटीमीटर बड़ी है, 25 सेंटीमीटर बड़ी है. तो इफ दिस इज ऑफ x सेंटीमीटर, दिस वुड बी x plus 25 सेंटीमीटर. एंड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम थ्योरम, एज यू नो कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होती है. अगर ये x है ये भी x होगा, ये x plus 25 तो ये x plus 25. नाउ इट इज सेइंग find the measure of its side if its parameter is 177. Parameter equals to क्या होता है? Sum of all side basically, है ना. और यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे टू लेंथ प्लस ब्रेक, बिकॉज इट इज सिमिलर टू रेक्टेंगल, है ना. सिमिलर रेक्टेंगल जैसा है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2 into लेंथ प्लस ब्रेक. So we can do this thing. 2 length is given x plus 25 and breadth is given x. When you add 2x plus 25, or you can say that 4x plus 50. Here this was given 170. अब आप algebra लगाइए यहाँ पे, है ना, and you will get this. ठीक है, x equals to कितना आया? 30. मीन्स ये साइड आपकी 30 है, तो दिस वुड बी 55, क्योंकि 30 से ये इतना 20 बड़ी थी. आई होप इट इज क्लियर, है ना. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज गिवन 3:4. सेम वे अगर आपका यहाँ पे x plus 25 और x लिया था, आप लिखोगे 3x and 4x, और से आपको सॉल्व सिमिलर करना है. इन अ पैरेललोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB equals to 3x plus 2, DC equals to 5x minus 8, and A equals to angle 2B. Then find out. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद जस्ट try to solve the question, rest of the question by yourself. So it is given AB is given 3x plus 2, 3x plus 2, and DC is given 5x minus 8.
चलिए, है ना, एंड एंगल ए इज गिवन टू एंगल बी, ठीक है। ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पहले एंगल्स निकाल लेते हैं। एंगल ए इज गिवन टू एंगल बी, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सपोज दैट, है ना, ये पैरेललोग्राम है आपका। दिस इज गिवन एंगल ए एंड दिस इज गिवन, सॉरी, ए बी सी डी। सो एंगल ए इज गिवन टू एंगल ऑफ बी, बी तो ऑलरेडी बी है, ये कितना हो जाएगा, टू एंगल बी होगा और ये बी हो जाएगा, करेक्ट। अब ऐड कर लीजिए, बी प्लस टू एंगल बी प्लस बी प्लस टू एंगल बी, अपोजिट साइड से, अपोजिट एंगल से ना, 360, 1b 2b 3 हो गया, 3 1 4 4 2 6, एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, इसमें 60 डिग्री, मतलब ये आपका 60 है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 120, क्योंकि इसका डबल है ना। तो एंगल्स तो आपको मिल गए, ये 120, ये 120, ये आपका 60, ये 60, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ पूछ रहे हैं। अब ए बी और आपका सी डी इक्वल होते हैं, मतलब 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 8 होगा। अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा, x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, 2 प्लस 8, 8 यहाँ आएगा, माइनस से प्लस हो गया, 5x माइनस 3x, ये 3x बन गया तो 10x प्लस 2 2, x इक्वल्स टू 10/2, कितना आया बेटा 5 सेकेंड। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम। अगर आपके पास डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।